अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मावा शजाज। हाउ यू गाइस डूइंग? मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. How are you, Mavish? वेरी गुड सदफ, हैप्पी टू सी यू। वी हैड टू डू दिस चैट अ लॉट अर्लियर। हमें मंटो की फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड और फिर बाकी ड्रामे करने थे। मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई थी, अभी भी वो इमरजेंसी चल रही है, तो प्लीज कीप माई फैमिली इन योर prayers. It's my khala, she's very very sick, so I had to fly down to Karachi in an emergency, but just pray for her, just keep her in your prayers. She's been fighting cancer for 2 years, so हम ये थोड़ा जल्दी नहीं कर सके। सरफ, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका हफ्ता? देखे आपने मंटो के एपिसोड्स? Well, that was the excitement this weekend. What lives we lead. के मंटो की एपिसोड ही सबसे exciting चीज थी. But yeah, I mean, I think a lot of people were waiting after, हम्म। particularly after Sun Mere Dil. This and as you've वेटिंग been विद टेंशन, परेशानी। I think we've been saying it, you especially, about a kind of lackluster, apart from a few honorable exceptions, we've had a lackluster season, right? So क्वाइट। we were really hoping for something to hook us. Now हम्म। tell me, did it hook you? Did it grab you? ओके, आर वी डूइंग दिस? आर वी गेटिंग इनटू इट? Yes, we Okay, are. we're getting into it. Okay, so I have good news and bad news. Uh-huh. And life of a reviewer, because you can't, like, I wish sometimes that I could ignore some of the things that I want to ignore, that I want to just Mhm. quickly just fall into that loving thing. But like my critical brain just doesn't stop. So I'm going to start with the good news. And the good news is it definitely is that drama that will hook you, that will keep you engrossed. It's definitely a drama that offers a lot of great production quality, which we don't often see sometimes in our dramas. Because मेरी रिसेंटली अमीन इकबाल साहब से बात हो रही थी, जो राजा रानी के डायरेक्टर हैं, और मेरा और उनका थोड़ा टिफ भी हुआ था शुरू में, बिकॉज इन द बिगिनिंग वी कुडंट, आई कुडंट अंडरस्टैंड राजा रानी It एट was ऑल। a gentleman's tiff. It was not Oh, serious. yes, hat tip. So it was obviously, and it's never serious for me. Hard, apart from one, two padas, I don't think मैंने कभी कोई जिंदगी में इस तरह के points पे कोई चीज इतनी seriously लिया. I'm always able to move on. Um, so Amin Iqbal made a very good point. I'm hoping that he can come and join us someday for a discussion. And he said that, you know, एक तो एक टेक्निकल स्टाफ की वो बहुत बात कर रहे थे कि टेक्निकल स्टाफ जो है उसको बहुत कुडोस मिलना चाहिए। हम राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सबको प्रेज करते हैं, लेकिन हम टेक्निकल स्टाफ जो कि 50 डिग्री हीट, 40 डिग्री हीट, 45 डिग्री हीट के अंदर छतरा छतरी लेके खड़े होते हैं, छाता लेके खड़े होते हैं, लाइट लेके खड़े होते हैं, बूम माइक्स लेके खड़े होते हैं, who make sure that everything looks the way a director wants it to look or the writer wants it to be like, they don't get that credit. So we will definitely make sure that when we are reviewing, we will also factor in these people. We try to do it, but yes, कभी कभी भूल चूक और कभी कभी इग्नोर भी हो जाता है। दूसरी बात जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी मुझसे, वो ये की थी कि एग्जॉम एक एक मतलब एक कमांडो मोड में शूट हो रहा होता है अक्सर ड्रामा, Hmm. पाकिस्तानी ड्रामा एक एक। और ये मैंने पहले भी सुना है, लोगों ने मुझे पहले भी बताया कि एक एक दिन में 40-40 सीन शूट हो रहे होते हैं, 20-20 सीन शूट हो रहे होते हैं। तो इनफैक्ट वंस आई वाज स्पीकिंग टू हुमायूं, एंड ही, आई थिंक ही मस्ट हैव सेड इट ऑन रिकॉर्ड समवेयर आल्सो, बिकॉज एंड लॉट ऑफ एक्टर्स से इट कि वी प्रेफर फिल्म्स बिकॉज फिल्म्स आर 90 days work, 40 days work, and then you're done and the story is over, and then you get a huge payout from films because it's a gift that keeps giving, it stays on for legacy. जबकि ड्रामे 40-40 आप सीन शूट कर रहे होते हो, फिर 3-4 महीने बाद हार्डली वो कौन से कितने ड्रामे आपको याद रहते हैं? सारे ड्रामे तो याद भी नहीं रहते। तो एक असेंबली लाइन है। तो आई वॉन्ट टू प्रेज ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व ऑन द सेट ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ, बिकॉज द स्केल दैट नदीम बेग हैज been able to execute is wonderful, and for drama it is a challenge and a half. आसान नहीं है फिल्म के लिए, फिर भी आसान है। फिल्म के लिए स्केल लाना इज नॉट डिफिकल्ट, इट आई मीन इट इज डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ चैलेंज। आई थिंक ड्रामे में वो स्केल लाना, क्योंकि आपको पता है कि एंड में ऑडियंस ने इतने से डब्बे या इतनी छोटी सी स्क्रीन में देखना होगा ये, तो उसके लिए स्केल को लाना, एस्टैब्लिश करना, हैट्स ऑफ टू नदीम बेग एंड द एंटायर टीम एट सिक्स सिग्मा and next level entertainment, Sana Shanawaz and Samina Humayun Said Jaji Seja, all of these people, and the smallest person on the, like smallest से मेरी मरादी है कि वो बेचारा जिसको कोई पूछता नहीं है सेट के And ऊपर। there is a dilemma, right? क्योंकि हमें हम्म। पता नहीं होता कौन है हमें सेट पता पे. नहीं होता, तो प्लीज मतलब वो जितने भी लोग हैं जो क्रेडिट्स में जा रहे हैं, प्लीज उनको भी कभी लेकर आए। बीटीएस उनका भी दिखाया, आई एम श्योर कुछ लोगों ने दिखाया होगा, बट प्लीज उनको भी बीटीएस में डालें, हम देखना चाहते हैं। And Mavish, not everybody wants to be in front of the ये भी parda है। screen.
ये भी है, दैट इज तो ऑल्सो ट्रू। ये भी एक बात है, बट आई एग्री विद यू अबाउट द cinematography. हम्म। Absolutely beautiful. I okay, I'm going to say something here. गो मार अहेड। पड़ेगी, but I believe that the lighting हम्म। is much better than Love Guru. पहले मैं रखी हुई थी अपनी वो ना, क्या हाँ। ओ पता नहीं लाइटिंग अच्छी है भाई, प्राइज टू नदीम साहब। हाँ। भी वो सीधा उन्होंने वो भी कर लिया, वो थोड़ा सा साइड पे फ्रेड एजेस थे ना, कि हम्म। लाइटिंग इतनी खूबसूरती से उन्होंने लाइटिंग की है सारी चीज की, जहां इंटीमेसी क्रिएट करनी है, जहां पावर क्रिएट फियर करनी क्रिएट करना है। है। हम्म। और वो कैरेक्टर्स को भी उन्होंने डिफाइन किया, दिस इज व्हाट अ गुड डायरेक्टर डज, राइट? ही इज I अ गुड did you डायरेक्टर, ही इज notice अ। the difference in personalities हम्म। between I think Siraj Amritsari जी। and क्या बिन्यामीन। जो क्या उनका बिन्यामीन। बिन्यामीन। बिन्या, वो भी मुझे बाबर मजे अली। का लगा ना ना, and I'm हाँ। sure the people will understand. There one is kind of like very kind of hyperactive, और वो नोटिस किया कैसे बाबर अली उछल रहे अपनी कुर्सी से, हम्म। because more to lose बेटों के मामले में ना। तो हम्म। जो सिराज अमृतसरी वेरी काम डाउन, आसिफ रजा मीर अमेजिंग। Oh my God, terrific. I'm gonna come to that. He's like a sinister Santa Claus. Oh my God, he is so good. He is I love bone, that phrase. he is bone chilling. Because like he's got these big, beautiful eyes, his colored eyes, and we've always loved Asif Razamir. And I remember watching the heart attack I got when I saw Muqabil. I was like, what? What have they Is done? this What right? have they done to my beautiful Asif Raza Mir, जो कि हम इनको देख देख के तन्हाइयां में बड़े हुए, and then obviously he was MIA for a very long time, and we grew up loving him. But I think that his evil avatar is so good. He's But so he good. isn't quite evil. I mean, Yes, it's like yes. क्या उसका नाम है, Godfather, right? Sinister Santa Claus. You Sinister. should hate these people, but Yeah. you kind of like you start I'll tell identifying you with why that is. I'll tell you why that is. The reason why that exists is because the world itself, we know what we're getting into. Like when you're getting into a house of horrors, and something is going to come and scream at you, and that becomes a part of the adrenaline. And I also want to address the criticism that has come to Memento Nayu with this point, because like I wanted to start with the good news, and the good news is there Khalil Rahman Kamar makes no bones about where he is. उन्होंने कहा कि जी देख लो, ये पागल हैं दो, ठीक है, इनकी बेटी भी पागल है। अब वो बेटी है बड़ी प्यारी सी, ईमन सजल इज लाइक दिस them. डेंटी लिटिल फेरी प्रिंसेस, बट नो शी इज नॉट अ फेरी प्रिंसेस एट ऑल। सिमिलरली आपने वो जो दो लोगों को बड़े प्यार से, अच्छा मजे का जो मुझे लगा ना, जो एक राइटर और डायरेक्टर का ही विजन जब मर्ज करके खूबसूरती से आपको वो सीन दिखाता है कि देखिए यू लुक एट दीज टू कार्स कमिंग इन, दीज टू पीपल, एंड यू नोटिस द फोली इफेक्ट्स गाइस आर द साउंड इफेक्ट्स, जो कि Hmm. आपको सुनाई देते हैं कि बर्ड्स चिर्प कर रही हैं, बच्चा भाग रहा है, पीछे से कुत्ते की आवाज आ रही है, जो कर्जे जान में भी साकिब खान ने बड़ी कमाल तरीके से यूज किया था। तो फोली जो यहाँ पे नदीम बेग ने यूज किया है, और राइटर ने एक सिंपल कॉन्वर्जेशन से शिकाई है, हाँ भाई जैसे दो लोग ऐसे बातें करते हुए सादा से आ रहे हैं, and the moment the conversation keeps growing, and Nadeem Beg is using quiet environmental sounds, small birds chirping, little things rustling in the background, and the conversation keeps getting eviler and eviler and Escalating. Mm. escalating. It keeps escalating into you're like वो, अच्छा टीजर से हमें पता तो चल गया था कि ये बोरिंग फैमिलीज हैं, लेकिन थिंक अबाउट इट कि आजकल का जमाना अगर ना होता और ये टीजर में हर चीज बताने वाला चक्कर ना होता, और अगर हम ये जनरल ओपन सिनेमा के लिए ओपन कर रहे होते लेट से, या एक ड्रामा खुल के बस एक सामने आ गया, फर्स्ट लुक आया और ड्रामा आ गया, तो कितना मजे का लगता है कि दो आदमी बात करते हुए जा रहे हैं और पता We, चलता है कि we फ्यूल have है। talked about that. It is a luxury. हमें इट इज नहीं अ है। लग्जरी, हाँ अच्छा। The entire story आपको पता लग जाती है पता चल टीजर, जाती है पूरे टीजर and से, हाँ। and it's really disappointing at times because sometimes dramas are so terrible, तो टीजर में ही सब कुछ आपको पता चल अच्छा, और जाता है। टीजर से फॉल्स एडवर्टाइजिंग भी होती है, ऐसे Right. बताते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, अंदर ये से क्या जियो, पुरानी जियो I'm जमाने की। afraid is the biggest culprit. हाँ, हु। Geo, ओ right? यस। Zindagi, remember that song, Kitni Haseen? And what was the drama? I mean, story भाई इतनी हर ड्रामा amazing जिसमें थी, वो छत पे बरकी but कुमकुमों के नीचे लड़की भागते हुए आ रही होती है खुले हुए दुपट्टे और बालों के साथ, और फिर अचानक से पता चलता है ये तो वही घिसा पिटा फॉर्मूला है।
you और जो know, stupid वो बीच पे डिनर्स होते हैं वो, beach पे. anyway खैर that's Anyway, my yes, no, we're not that getting into that. Let's come back. Okay, so I think that the good news here is that there are a lot of points, a lot, like 90% of the points between the director and the writer's vision have somehow amalgamated into giving you those great moments oh, that are hang on, I have cinematic. not left that scene. I have not Okay, left that scene which because scene? what I was expecting वो जो दो गाड़ियां हाँ. क्रैश होती हैं, right? Now, आम दुनिया में लोग एक दूसरे से मुकाबला लगा लेते हैं. I've seen it. I've हम्म. been to Ankoon शहर लाहौर हम्म. and गाड़ी से गाड़ी and my nephew is going, हमने नहीं पीछे करनी गाड़ी. And I'm like, वो we आता don't है have ना बाद में, वो बाद में होता है ना. राइट. जवान खून है, एंड आप समझाओ फाइन कर रहे हो, नहीं नहीं हमने नहीं. सो व्हाट आई रियली अप्रिशिएट वाज द वे दैट वो साइमा आहिस्ता सी आवाज के में कहती है, हम इन पे तरस खा लेते हैं. एंड हम्म. तरस वाला डायलॉग गेट स्वैप्स अराउंड हम्म. when it's the scene is explained later on. So I But I'm think not this talking about that scene. I'm talking about the opening uh, scene. I'm talking about the opening scene when Asif Raza Mir and Babar Ali meet. Because I'm starting from the beginning. yeah. That was the scene where you realize that, oh, it's all quiet and looks like a regular conversation, but apparently these two are bloody murderers, right? So that was the scene where I was talking about कि वो किस तरह escalate करता है. अच्छा, जो आप सीन जिसकी बात कर रही है ना, वो भी बड़ा एक क्लासिक, एक बड़ा पाकिस्तानी हरकत है ये. दोनों गाड़ियां फंसा के बैठ जाते हैं गली के अंदर और फिर देखते हैं मैं नहीं हिलूंगा, वो कहते हैं जी मैं नहीं हिलूंगा. तो वो एक क्लासिक ईगो बैटल तो है ही है. So that was also really well done. But Hmm. let's come and talk about the setups. जो Hmm. सेटअप किया है मंटो के ड्रामे को, जिसमें नदीम बेग का एक तो मुझे ओपनिंग क्रेडिट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत, Hmm. स्टनिंग स्टनिंग, ब्रिलियंट, 10 out of 10. एक तो, और दूसरा मुझे जो मजे की चीज लगी कि ईच सीन डिस्पाइट खलील और रहमान कमर्स, बट दिस इज नॉट द बैड न्यूज, आई एम नॉट कमिंग टू द बैड न्यूज, इज गुड न्यूज. सम ऑफ द डायलॉग्स आर सो like gripping and immediately put you in the middle of the chaos, in the middle of the conflict of years and years behind. अच्छा, मुझे वो 71 वाला रेफरेंस भी बहुत अच्छा लगा. सलमान Hmm. शाहिद ने जो 71 का रेफरेंस दिया ना, कि जब जर्ब हो जाती है मोहब्बत, जब जर्ब हो जाए तो तकसीम हो जाती है, दैट होल मैथमेटिकल थिंग दैट ही डज. एंड माय फेवरेट इज के आपस की लड़ाई में खुद तो इंसान कुछ बन जाता है लेकिन कौमें नहीं बनती. एंड आई कौमें थिंक नहीं बनती, क्या बात है, क्या वेरी बात है, इंपॉर्टेंट कमाल डायलॉग. की बात है ये. और आई थिंक वो पूरा रेफरेंस ही जो है ना, जो द डिविजन ऑफ कंट्रीज, द डिविजन ऑफ नेशंस एंड द डिविजन ऑफ ब्रदर्स, feuds that just don't end. You have to appreciate the theme of this drama. And I saw a clip of Nadeem Beg saying that it's about how certain revenge and feuds are just, they go on and on, and they go on for so long you don't even know what you were fighting for. I think that that has to be remembered by all of us when we analyze these characters. जब हम इन characters को देखेंगे, यार ये क्यों, क्या मसला है, and the anger and the fury you see in Saima's eyes, in Saima Noor's eyes, and you see how she's so unrelenting, and even Sabah Hamid's character, which is so unbelievably, cold and unfeeling. You realize that this animosity goes way deeper than just people trying to convince each other. And जब वो आसिफ रजा मीर का कैरेक्टर मल्टीपल, वो आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि वो जगह जगह जाके ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है सबको कि मतलब क्या करें, As लेट गो. usual with the Khalil Rahman Kamar, हम्म. the man is reasonable, the नॉट woman नॉट is नॉट reckless. बैड न्यूज, सदफ बैड न्यूज रोक दें, मेरे पास बहुत, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बैड न्यूज लेके, लेकिन अभी रुक जाएं. अभी सिर्फ गुड न्यूज पे बात कर रहे हैं. कितनी स्टनिंग है साइमा नूर भाई, ओ माय गॉड, लाइक शी आ इज, गई तो चाह गई. आ गई I तो mean, छा गई. and no overacting. No. She's feminine. Acha, this is another. I wish people would understand. Hmm. Please take notes. Shouting, Danish, the more I'm looking at you, does not make you powerful. It makes Yeah, you look like a fool, right? yeah, yeah. जब आप पावर से डायलॉग कहना होता है, वो साइमा नूर क्वाइटली कह रही होती है आसिफ रजा मीर को It's उस such a, अंधेरे कमरे में, द लाइटिंग अमेजिंग, उसका हाथ पकड़े कि तुमने नहीं उठाना मैं उठा लूंगी. आई मीन देयर वाज सो मच पावर इन दोज फ्रेजेस एंड यू yeah. कुड फील हर पेन. वो छुपाई फिरती है अपनी तकलीफ और दर्द को. शी Hmm. गोज अराउंड विद हर नीस, उसको अपनी बेटी बनाया हुआ है सब कुछ. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट एज वेल इज कि चलो बीवी रुस के चली जाए लेकिन बहन तो नहीं ना रूठ के जा सकती. And that is a very Punjabi thing. Acha, you're about to get hate because anyone who calls out problematic stuff in Punjabi or Pashtun culture or Baloch culture or I'm whatever, Punjabi.
I'm So, also a हाँ, little bit Pashtun. So oh come get God, oh, come come at and me, get bro. Come at me, bro. Okay, so anyway, guys, come go at her. Don't take a dig at me. I'm married to a Punjabi. So anyway, I um, am Punjabi and I'm I'm an married. honorary Punjabi हूँ मैं, I think. Actually, your Punjabi is fabulous. I really enjoy It listening is to it. okay. अच्छा सदफ, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने रिव्यू देना था एक हमें पंजाबी में. But I'll slip into it. मैं उर्दू प्लीज में डू, चली प्लीज डू. फिर खुद को रोकना नहीं, फिर कि जब कहते ना कि आ गए तो छा गए, फिर कर दो फिर. हाँ आ जाएंगे हाँ, तो मेरा ख्याल है कि साइमा इतनी कोई कमाल की अदाकारा है, और जिन लोगों ने साइमा को अभी डिस्कवर किया है, प्लीज. अच्छा, मेरी मेमोरीज में आ रहा था फेसबुक में ना, 7 साल पहले मैंने रिव्यू किया था मुबारक हो बेटी हुई का. 7 साल पहले, हाँ, 7 8 साल पहले मुबारक हो बेटी हुई का रिव्यू किया था, और उसमें भी साइमा वॉज अमेजिंग. वही रोना धोना, बिग बैंग सिग्नेचर. लेकिन उस ड्रामे में साइमा की वजह से मैं हुक्ड इन नहीं हूँ, और मुझे इतना पसंद था वो ड्रामा कि बस. एंड साइमा की पुरानी फिल्में प्लीज देखें, मेहंदी वाले हाथ देखें, चूड़ियां देखें. कमाल का काम है उनका, जितना भी जो भी उन्होंने काम किया, वो क्रिंजी वाली भी. saw it in the cinema, believe it or ओ not. वाओ. अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि आप हम घर पे वही बॉलीवुड फिल्में ये वो सब चल रही हैं, तो किसी ने कहा कि यार आपने चूड़ियां देखी है. मैं, ये क्या होती है, ये कौन सी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म तो उनका नहीं. वो कैसेट ढूंढ के कहीं से, सीडी पता नहीं कहाँ से, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी हूँ मैं. तो कैसेट सीडी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के उसकी मंगाई. फिर हमने चूड़ियां देखी, फिर हमने मेहंदी वाले हाथ देखी, एंड देवर ऑल बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज अबाउट वुमेन बीइंग मैरिड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एंड देन उनकी वो जमीन हथियाने के चक्कर में ये सब किया जाता है. सो दीज आर वेरी पावरफुल फिल्म्स, एंड शी हेल्ड द फिल्म टुगेदर. सो साइमा, प्लीज मेरा सलाम कबूल कर Very लें. talented woman. Oh my And God. I think other people should take. No, I didn't notice too much. I think Sabah Hamid's role was a little limited right now. For now, Maybe, yes. yeah, well, maybe in other episodes. And Because I she's a think they're setting up Siraj Amritsari's house first. Hmm. It's House Amritsari, and then you'll see House Yamin, and then you'll see Yeah. other people. But I think क्योंकि अभी देखे ना, फोकस सारा सबा फैसल पे है, साइमा पे है. मुसद्दिक मलिक जो प्ले कर रहे हैं, उनका एक बेटा जो कि who's. इतराज जी जी, इतराज आप शुरू Right. सदफ, आपको कोई गुड न्यूज ही नहीं देनी, आप फौरन एतराज पे आ रही हैं. जरा नहीं सब्र नहीं करते हैं. मैं आपसे कह रही हूँ ना not हाँ. for the people. Oh, अच्छा. I've got some bad news for the मी टू, thing. मी टू, विल This is कम टू दैट. all the good stuff, दिस right? इज ऑल द गुड स्टफ. हाँ. Jill Joanna, you were saying she wasn't, she was a bad girl. No, I think she looked incredibly bully. हम्म. She has no idea of the realities of life. तो हम्म. मैं समझती है because she's in this protective bubble. हम्म. भाइयों की, my खानदान. She's the पापा की परी है basically. And हम्म. I think Sajal actually did a fabulous job. Think about the giants she was up against. हम्म. And of course, obviously, I have to commend Asif Razamir and Sajal for acting so Working well, together so professionally, despite, yeah. yeah, Despite the despite their baggage. Hmm. Hmm. difficulties. Hmm. So I love the way Sajal made that a girl so, in a way, she was vulnerable. As a cigarette ke puff le rahi और hai खांस खांस भी रही है. खांस भी रही है, she didn't overdo it, it was really cute, all of that stuff. वरना है ना, it would be so easy to hate her. The scenes where I really hated, हम्म. right, मेरा ना वो नहीं है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है ब्लड, इज द इजी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिविलेज ओवर देयर, कि हम्म. रिश्वत रोब, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि भाई ये गुंडे की बेटी ये रोब डाल रही है, फोन आया, दैट काइंड ऑफ थिंग, उसको हम्म. दाखला मिल गया. एंड That's a reality. I know it's a reality, but it makes me angry हम्म. every time I see it, particularly in academia. Then, चलो और बाकी की दुनिया में सब कुछ चल जाता है. For some reason, I felt especially mad that this is happening in academia. That's the diaspora Pakistani in you speaking, because as a I have, Pakistani who has grown up and watched multiple cases of merit ka qatl, matlab, it's like it's something that you feel angry about, but then it's a part of Pakistan, growing up in Pakistan, right? I mean, मैं जितनी सजल की तारीफ करूं, मैं तो मतलब उसकी ओजी फैंस में से हूं, और मैं सजल को जब भी स्क्रीन पे देखती हूँ, आई जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी what does she do now, what magic will she she's create now. become a technically better actress, right? Mm-hmm. पहले purely organic थी. Or raw thi, okay. Journey, right? So some people like Mahira would she did all the technical, so then she shed her skin, which she's Hmm. right, and she jumps in with her heart. And Acha, I think I really think that I have an opposite opinion. I think that while Mahira has a lot of beauty and grace and everything, and I love her for
so many things that she's, and I think I love her most because she's so outspoken, she's so bold and fearless about so many things. वो उसका ओपिनियन कभी गलत भी होता है बट she takes it on the chin. ठीक है, एक तो वो है, लेकिन मायरा जो है मुझे लगता है जो सजल कर सकती है ना वो पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब मायरा, सबा, महविश सब बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये अच्छा काम नहीं करते, लेकिन एक तो मैं कंपैरिजन से मुझे थोड़ी सी वो भी होता है, कोफ्त भी होती है, No, I लेकिन don't think we should compare anyone. हाँ, Everybody has their own everybody unique. has their own, and everybody has their own has their own brand Lead that, role. हाँ, no, their The role brand that was they, made for Sajal. I'll say हाँ, the role was नो नो made नो, for. और देखिए सजल का जो है ना, सजल के अंदर जो फियरलेसनेस है व्हेन इट कम्स टू गोइंग इनसाइड अ कैरेक्टर इज बार नन, बिकॉज वो कहीं भी जाती है बैठती है, चाहे वो दीजू हो, चाहे वो जुबिया हो, चाहे वो क्या था, आलिया हो, आलिया थी वो कुछ अनकही में, जो विच आई वाजंट अ वेरी बिग फैन ऑफ एज अ स्टोरी, I बट didn't like Kuch Ankai as much. as But much as I was hoping for, for me to like, I love Sajal and Bilal together. So anyway, coming back to this role of hers, I think that I think she's definitely a bad girl in the sense that she has, no, I'll tell you why. I'll tell you what I mean by a bad girl. I mean, I'm not saying that उसने कोई कत्ल अशतल कर लिए हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप एक इस तरह के फैमिली के एनवायरनमेंट में ग्रो अप करते हैं तो आपके अंदर वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इतना सॉलिड नहीं होता। क्योंकि जब वो सीन है ना, वो बड़ा ही हॉरिबल सा सीन है, जो हॉरिबल इन द सेंस के मॉरली क्वेश्चनेबल सीन है, कि भाई वो जब कहता है कि जी मैं सिराज एंड रत्सरी बोल रहा हूँ, मेरी बेटी को एडमिशन दे दो, तो वो hmm. जो सीन है ना, वो उसमें शी इज लाइक चिलिंग कि हाँ ठीक है, She's so proud of it. That's so a, proud of that's it. why I was mad. Yeah, That's why I yeah. was And that's why I'm saying that she's not a good person. That okay. character is not a good I'm person. thinking more like I feel that she has an awakening coming to be a better person. No, I think Right? that has already come. She's still vulnerable. I No. don't think वो जो एक केस होता है ना बुराई का, उसके हम्म, ऊपर वो जो खौल है वो हम्म, हार्डन नहीं हुई. हाँ I हाँ think हाँ हाँ still हाँ, वो vulnerable. पॉइंट ठीक है, वो पॉइंट ठीक है आपका, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो सुनती है ना अपनी फुप्पो को ये बात करते हुए कि क्या हो हाँ, गया, अपने बच्चे नहीं कुर्बान किए जा रहे, और बता दो तो क्या, महमल महमल की, वो महमल के ऊपर बात करती है ना कि ठीक है, उसको उसको कुछ हो जाएगा, तो वो एकदम से पीछे हट जाता है ना आसिफ रजा मीर का कैरेक्टर, तो वो सुन रही होती है, दैट्स वेयर द सेकंड एपिसोड एंड्स, राइट, एंड इट इज, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग, इट्स दैट अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप। मतलब अभी तो आंटी जी की लाइफ में फुल प्रिविलेज चल रही है, अब्बा जी ने एडमिशन करा दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, मैं गुंडे की बेटी कितनी हूँ, मजे की जिंदगी है मजे की उसकी ना. जिंदगी है, मतलब शी सब डजंट, मोहल्ला डरता है उससे, हाँ, राइट. और वो रियलाइज नहीं करती व्हाट इट शहर मीन्स टू से. बी अ गुंडे की बेटी ना, पूरा शहर एग्जैक्टली जो डरता है उससे। तो तो आई थिंक दैट शी इज डेफिनेटली नॉट द मोस्ट मॉरली अपराइट कैरेक्टर, बट यू आर राइट, देयर इज अ रूड अवेकनिंग फॉर हर कमिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑल्सो with Sajal's character, and why I love Sajal is what you see her doing in मैं मंटो नहीं हूँ with Saima. साइमा के जो हम्म. सीन्स हैं, अच्छा, और खलील साहब के जो डायलॉग्स हैं, बैड न्यूज पे आ जाऊंगी मैं फिर, लेकिन मैं उस पे आऊंगी। खलील साहब के डायलॉग्स का प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो ही डजंट शो, ही कीप्स सेइंग थिंग्स, Well, यू he नो, has a certain structure to his dialogues, इट and कैन बी it's सो getting एग्जॉस्टिंग। tiresome. So, I mean, वो teasers में है ना, सोचा दुश्मन की बेटी का हाथ पकड़ूंगा तो कैसे महसूस होगा. Like, come on, man, move out of that structure. But अच्छा, एंड I get ऑल्सो ऑल्सो सदफ ही डजंट लाइक, अगर वो ये दिखाना भी चाहते थे कि अजान का कैरेक्टर आके अगर वो उसको पकड़ रहा है, तो उनको स्क्रीन प्ले में नहीं वो दिखाते चीजें, वो दिखाते हैं कि दो लोग आमने सामने show बैठे not हुए हैं। tell, show not tell. He doesn't show, that's what I'm saying, and he is stuck in that era of writing, आज से 10 साल पहले वाली, जिसमें वाकई इस तरह के होते थे कि खाने की टेबल पे कॉन्वर्जेशन हो रही है जिसमें कहानी खुलती है। अब ऐसा नहीं होता, स्टोरी टेलिंग अब ऐसे वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो खलील साहब को कोई प्लीज ये बता दे, और मुझे पता है क्योंकि वो इतने विशेष होते हैं अपनी राइटिंग और अपनी चीजों के बारे में कि वो चेंज नहीं करते, लेकिन ही नीड्स टू चेंज इट अप, बॉस चेंज करो इसको, ये नहीं चल सकता इस तरह, क्योंकि आपने जिस तरह कहानी सुना रहे हैं, आप और अब, कहेंगी कि मैं कौन जाएगा. हाँ, और मैंने तो लिखेगा कह दिया, मैंने तो कह दिया, मैं कह दिया सब, मैंने, और नहीं, मैं वो कर, खैर मैं ब्लैड न्यूज पे आने वाली हूँ, तो मेरे पीछे पड़ेंगे, अगर पड़ जाए तो कोई नहीं, मैं बता तो दे बैड न्यूज. हमें ना खोल दें वो दरवाजा. लेट लूज द kraken. लेट लूज द, बस बस मैं आखिरी कुछ बात करके मैं आई कम टू द बैड न्यूज। ओके. गुड न्यूज आखिरी में ओवरऑल ये है कि इट्स अ वेरी ग्रिपिंग ड्रामा एज अ ड्रामा, और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तानी ड्रामों का जो फ्लेवर है ना, वो काइंड ऑफ यही है कि बैठते यस. हैं लोग, बातें कर रहे होते हैं, हाँ, शो डोंट टेल वाला होना चाहिए, लेकिन वो अभी उस तरह नहीं है, बिकॉज इट इज अ ब्लेंड ऑफ थिएटर, इट्स अ ब्लेंड ऑफ
television, it's a blend of OTT, it's a blend of a lot of things. तो पाकिस्तानी ड्रामों की ना एक अपनी एक पेस होती है, सो उसको एक्सपेक्ट मत करें कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ दिखा देंगे, बहुत कुछ खोल देंगे. खलील साहब की पेस तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, तो वो तो कभी भी नहीं दिखाएंगे बहुत सारी चीजें. दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी ओवरऑल ड्रामे की, वो ये है कि बहुत सारी चीजों को हम्म जो पहली दूसरी एपिसोड्स में ना आपको बहुत सारी सोशल कमेंट्री ऐसी सुनने को मिलती है जिस जो लोग गलत समझ रहे हैं. मैं ये बात बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ. अच्छा जो वो लोग समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड, KRQ के डायलॉग्स आर सो मिसोजिनिस्टिक, दे सेड के 40 साल की बाद उम्र नहीं रहती और औरतों को तो रोने के लिए रखा है. ओ भाई शी वाज देख बीइंग तो लो. sarcastic, नो वो तड़क एग्जैक्टली. लगा रही थी। भाई सबसे पहले तो वो एग्जैक्टली और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रीड की आपने. आर यू राइट। हैविंग ट्रबल रीडिंग द एक्ट्रेसेस क्यूज. शी वाज बीइंग, औरतों को तो रोने के लिए रखा जाता है. अब मैं तो और ज्यादा OTT करके दिखा रही हूँ, बट शी हैड दिस वेरी सार्कास्टिक स्माइल. एंड वो जो नहीं सेब खाते हुए बंदा जो अजीब सड़ियां मार रहा होता है बैठी हुई अपनी लाइफ के बारे में, वो कर रही थी वो अपनी भतीजी के साथ. और दूसरी चीज ये कि खलील साहब के जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो यही हम करते हैं ना कि वी थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर. कि हम जो हैं उनकी उनके, और वो नो डाउट उनके राइटिंग में बेइंतहा मिसोजिनी है, और हम मल्टीपल टाइम इस पे रोध हो चुके हैं. लेकिन हम उनकी जो चीज वो बताने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने जेंटलमैन में बहुत खूबसूरती से बताया, उसको हमने अप्रिशिएट भी किया, हमने क्रिटिसाइज भी किया. यहाँ पे भी हम ये नहीं करेंगे बंद करो ये नंगा नाच की क्या, हर थोड़ी देर बाद मिसोजिनी की हम डंडा पीटना शुरू कर देते हैं. उनके अंदर जो उन्होंने कमेंट मारा है ना, जो ये पूरा साइमा और आसिफ रजा मीर के बीच का डायलॉग है, या साइमा और सजल के बीच के जो डायलॉग्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं. एंड आई पर्सनली थिंक दैट दे आर द हार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर मी एज अ फेमिनिस्ट. कि मैं देख रही हूँ कि यार ये है कहानी के जंग में औरतें जो एक एक तरीके से कभी माले गनीमत बन जाती हैं, और वो जो पूरी डायनामिक है जिसमें सबा फैसल उसको कहती है ना कि मैंने तो इस उम्र में मैंने मैट्रिक किया था, जब तुम पैदा हुई तो ये हुआ था, जब इतना हुआ तो ये हुआ था. This is a tragedy, man. You're looking at a woman's life as a tragedy, and she's राइट। unable to connect with her daughter, and her daughter has now found solace in her puppo, who's just brimming with vengeance. I think these are very interesting characters. Do I wish the dialogue was less contrived? Yes, I'll come to the bad news now. But am I enjoying it? Yes, absolutely. And I do have good hopes from it. Thank you, Nadeem Beg, and thank you, the actors, and obviously every other person who was involved in the Sadaf. You know, Go. we can have good hopes from it. And this is one thing. It's like, as a critic, as a viewer, I Hmm. reserve the right to immediately withdraw. हाँ. 5 minutes, मुझे पसंद ना आई, तो I'll say so, हाँ. right? Hmm. And, and this ridiculous thing where, अच्छा आपने पसंद ही क्यों की? Well, no, हम लोग दरवाजे किसी चीज पे नहीं बंद करते. Hmm. खलील साहब से भी कुछ अच्छा हो सकता है. उन्होंने प्यारे अफसर लिखा है. I हाँ. had a little thing on Twitter about this. Hmm. But the thing is, I do see people's point, and I pointed this out. I think me and Of you pointed it course. Of last course. week when before in the teasers. कि this is like, I mean, देखो, दानिश तैमूर रोज सुबह उठ के एक नया ड्रामा इस Hmm. टाइप का साइन करते हैं. Sorry, Hmm. दानिश, you seem to be on my mind a lot. Good looking young actor. What can I do, right? Only. Yeah, But take it आपको positively. Danish, yeah, take take it it positive. positive, please. I'm an auntie. So, what it is that we are seeing multiple dramas. अभी ये जो मन मस्त मलंग, फिर अभी शेर, then there's bound to be a couple of others. दुश्मन जो है ना वो star-crossed lovers. That theme, it's happened a lot. So yeah, there's nothing new in the plot so far, Hmm. unless मेरी ये दुआ है और एक ख्वाहिश है, and I'm gonna say this may be me being wildly optimistic कि Hmm. maybe Khalil Rahman Kamar is actually gonna play with the trope, because it looks to me that Azan Sami Khan's character is less and less heroic with every reveal. And, Hmm. and he looks, I think that Manto Saab is going to save her from him. It's Possible. not going to be that thing where, obviously, लड़की जो है ना वो impress उससे होगी. He's dashing, he's really good looking, साफ जो बात है. और Hmm. फिर the way he's playing that kind of bad boy, Yeah. um, I noticed the mannerisms that Azan has picked up very Hmm. good, you Very know. well done. That even कुछ small और उन्होंने scene, किया है. yeah, yeah, Yeah. yeah. Oh, those small scenes As are he's rubbing his neck, he's doing all that kind of stuff. I creepy mean, stuff. it's kind of villainous and hot at the same time. If Hmm. I was 16, Hmm. not now. Hmm.
So I mean, like, so I can see. I don't know. I'm hoping this is the way to go. If it doesn't, okay, we watch a lot of Turkish dramas, and one of the things that my husband is like, दुश्मन की बेटी से प्यार करोगे ना, तो she'll kill you in the end, Hmm. right? Because we watch a lot of Turkish dramas, particularly historical ones, and guess who betrays her husband the most? Hmm. वो दुश्मन princess that that the Yeah, what South that whatever has forcibly uh, married, which we've right? also seen in our Yeah, dramas and films. yeah. So this idea that this is some kind of great romance or sulah ho jayegi. No, you just killed her husband and her No. brothers. You killed her brothers. You killed her father. Oh, So she bro, that is died. not happening in this drama. I can Right. guarantee it, and I'm pretty sure I'll be right. And I want everyone else to be very, very careful. This is going to be a gore fest. What's going to happen is, Yeah. yeah, I don't think there will be any clear cuts. I think he set it up like this, and with all his faults, Khalil Rahman Kamar is um, true to his exposition. वो जो Hmm. चीज एक्सपोज करते हैं आपके सामने वो उसी पे टिके रहते हैं। जब उन्होंने बिलाल अब्दुल्ला को एक सेंट बनाया था तो वो सेंट ही रहा है एंड तक। वो बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि मैं कहा कहाँ है भाई ये बंदा, हमें नहीं मिलता सड़क पे चलते हुए ऐसा बिलियनर। हमें फ्रेंडशिप डीएम्स ही आते हैं बस, कभी नहीं आया कोई ऐसा चलो बिलियनर। ये हो रहा था. Do you remember that we had two dramas with a similar hero? I think Sherry was also playing, Sherry Munawar was या, also playing the मैं billionaire, थामूंगा यमन right? का हाथ। Hotel हाँ। manager. Everybody should do dakhla in hotel management. I'm telling you. Young girls, this is my advice. Right? अल्लाह से तो कैसी एडवाइस दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ भाई बॉयज, बॉयज कहाँ हो, ऐसे वाले बॉयज हमें नहीं आते भाई। ऐसे वाले बिलियनर्स के डीएम्स इनको ही आते हैं। खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब वो चीज कहानी खोलते हैं ना जैसी, और वो जहां बिठा देते हैं आपको, फिर वो कहते हैं बस अब, वो कहते हैं ना पुत्र तो एहो ही लेना है अब, यही होना है तेरे साथ, अब यही हो Anyway, गया। he's very consistent with his कंसिस्टेंट character. है, कंसिस्टेंट Yeah. है, जेंटलमैन में भी कंसिस्टेंट है। इकबाल मुन्ना को उन्होंने दिखाया, हाँ उन्होंने वो पॉइंट दिखाया, लेकिन उन्होंने शुरू से दिखाया कि भाई ही इज लिविंग इन अ वायलेंट वर्ल्ड, ही कैन किल इफ ही हैज टू, एंड ही डिड। So I think that here also he is trying to tell us, and I think कि जो पूरा मैसेज है मंटो का वो यही है कि what happens when an innocent man is in a violent world, which is very similar theme to Hmm. Gentleman. But here he's less afraid of exposing us to the evils of that violent world, and he's taking us deep into the psychology of these people. um Plus, humor नहीं है. Did you notice the way Very dark Humayun humor. was handling it? I loved Humayun's kind of very low key. Didn't try to, थोड़ा सा कुछ बनने की कोशिश नहीं की. Oh, Very low key Humayun professor साहब. is genius, मतलब he's such And an the black underrated humor. actor. Hmm. भाई एक तो You know, he's very good at black humor, या Humayun. टीजर्स में जो वो, अगर आपने मुझे रोक दिया, वरना मैं तो उसे बहुत वो पसंद. I loved that, I love that was so hilarious. अच्छा अभी भी अब गुड न्यूज खत्म करते हैं, क्योंकि लास्ट मेरी गुड न्यूज हुमायूं सईद ही है। सनम सईद और हुमायूं सईद की केमिस्ट्री, They हुमायूं work का, oh my together. god, so good, so good. Where And were you're like, people why sleeping? haven't these two connected yet? Why haven't they cast together before, Yeah, man? they were Oh my amazing together. god, Sanam so good. looks absolutely gorgeous. Acha, this is the thing that I love about Sanam Said. She doesn't try and pretend to be 16. वो I जो love भी that. बनती है ना, age appropriate but beautiful at that And age. dignified. Hmm. Hmm. डिग्निफाइड, मतलब खलील रहमान कमर के इस तरह के गंभीर डायलॉग को ये बताना कि मोहब्बत में डिबेट नहीं होती, डिस्कस नहीं किया जाता। एंड अगर ये कोई और लड़की बोल रही होती मैं सर पीट चुकी होती दीवार से। बट सो मैं Hmm. यही बता रही हूँ कि खलील साहब को चाहिए कि जितने लोगों ने इस ड्रामे में काम किया है, जितने लोगों ने इस ड्रामे को ओके किया है, उन सब के घर एक एक किलो मिठाई भेजें, और उनसे आइंदा जिंदगी में नाराज ना हो, क्योंकि उन्होंने इस ड्रामे को कबूल करके हमारे लिए पैलेटेबल चीज बनाई। और नदीम बेग सबसे बड़ा, तो मुझे कहता है, मैं कहती हूँ अपनी जायदाद नाम कर देनी चाहिए नदीम बेग के Yeah. खलील साहब को, कंप्लीटली हुमायूं सईद So, के भी। unfortunately, a lot of people are not willing to give Khalil Saab benefit of the doubt. And I honestly, if this was a Nadeem Beg show, I या, might, I might या, not have. या, But तो आपको क्या लगता है सदफ, मैं इतना नदीम बेग क्यों कर रही हूँ, और मैं इतना हुमायूं सईद और सजल की वो क्यों कर रही हूँ? बिकॉज इट इज द परफॉर्मेंसेज, इट इज द ट्रीटमेंट दैट इज मेकिंग दिस वर्क। अच्छा, coming to now, because now we have to address the elephant in the room called the misogyny in Khalil Saab's scripts. We have to talk about it. Oh my God. First of all, what was that scene of the kabutar? So done, bro. We don't need those scenes like that anymore. That kabutar scene was completely unnecessary. बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस scene की. आप और मैं ये कह रहे हैं ना.
अच्छा, right? लोगों को पसंद आ रहा है। I think the amount of attention and care, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, I don't like blood everywhere. What it was I realized, and this may be me being superimposing my view. So हम्म। पहले से ही वो नहीं है बुजदिलों की तरह पहले से ही कह देती हूँ, sorry if I'm wrong. दिस But I think that may have significance, that kabutar wala scene, because the amount of care and attention paid to it. Because I think there's a little line in next week teaser or something in which they say that I think Sanam says, Manto sahab itne buzdil nahi the, so something happened, something terrible हाँ वो तो happened. है, लेकिन ये जो सिंबलिज्म है ना, ये अब नहीं अच्छा, चलता है। वो जॉन वू की फिल्मों में खत्म हो गया कबूतर। मिशन इम्पॉसिबल 2 में था, किसमें था वो? भाई बस नहीं चाहिए, नहीं देखना। यस वी गेट इट, इट्स अ सिंबल ऑफ पीस, लाइक ड नहीं देखना वो वाला सिंबलिज्म। एक तो मुझे आई डेंट लाइक दैट, मुझे आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम, आई एक्चुअली लाइक एंड आई व्हाट आई वुड हैव शोन I इफ like the cat. I love the cat, वो जो मोटा मोटी बिल्ली बैठी हुई थी खाने के लिए। अच्छा मुझे पता है, मैं अगर मैं होती या मैं इसको देख रही होती या मैं कुछ कहती, तो मैं उसको ये हमारी मजाल हम खलील साहब को बताएं कि अगर मैं आपकी स्क्रिप्ट देख रही होती तो मैं Okay, क्या करती। हमारी मजाल। लेकिन साड़ी भी आन दो। मैं होती तो मैं ये करती कि वो उसमें वन ऑफ द पीपल, वो जो होता है ना शूट आउट्स में इस तरह के अक्सर बाई स्टैंडर्ड्स हर्ट हो जाते हैं, तो वो एक कोई बाई स्टैंडर, कोई बच्चा या कोई इंसान, कोई औरत ऐसी को हर्ट हो जाती, हु यू वुड हैव हेल्प टू द There हॉस्पिटल। would have been an uproar. There would have been an uproar. वो शुक्र करो कबूतर ही था, अभी मुझे तो नहीं लोग। अच्छा लगा कबूतर, खैर। अच्छा उसके बिल इसके अच्छा, बैड न्यूज, रियली वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आर द ऑब्वियस प्रॉब्लम्स इन खलील साहब्स। Yeah, but I don't think the dove was misogyny though. No, it's The not mis misogyny. No, no, it was just lame. It was just lame. I didn't like it. I am. I have so many problems with his dialogue. I think that his dialogue is so overdone, over contrived, over pulled, overemphasized. He doesn't show. He tells. He keeps telling that dialogue and dialogue and dialogue and dialogue. जब तुम जानती, अच्छा वो डायलॉग में भी भाई या तो स्टोरी सुना दो, और स्टोरी आराम से आप सुना सकते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा ने कहा था कि इस घर में शादी नहीं होगी तुम्हारी, बात खत्म हो गई ना, एस्टेब्लिश हो गया आपका पढ़ा है। जब मैं छोटी थी तो वो यूं आती थी, फिर मैं वो दूर से एक छतरी के नीचे से बैठ के फलां को देखे वो पूरी एक कहानी, अब बंदा कहता है अच्छा इस कहानी में से पॉइंट कब आएगा, और वो पॉइंट आते आते यू आर लाइक रियली हैव आई स्पेंट 5 मिनट्स लिसनिंग टू एब्सोल्यूट नथिंग। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन हिज डायलॉग, एंड द फैक्ट दैट ही डजंट लेट पीपल काइंड ऑफ थोड़ा इधर कर दो comedy, उधर कर दो, ओ माय गॉड। very comedy. उफ 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 उफ, मतलब कितनी, ये नहीं मैं कह रही कि उनकी चीजें खराब है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मैं पिछले आधे घंटे से तारीफें कर रही हूँ, लेकिन Hmm. वो कहीं अपने लिसनर के ऊपर रहम ही नहीं खाते। दिस was probably would have been, if you put this in a novel, sure, great, why not, it's a, Even then, it would have been irritating. नहीं but वो I'm एक sorry नॉवेलिस्ट, to हर say. नॉवेलिस्ट का स्टाइल होता है सदफ, हर नॉवेलिस्ट एक, अब Yeah, जैसे but आजकल मैं, this is getting tiresome, right? it I is for TV, yes. I was reading a book recently, it's called The Rule of Three, and everybody Mhm. has a way, it's a mystery thriller sort of a thing. Now I prefer each mystery, अब ये मेरी पर्सनल टेस्ट भी है, लेकिन जनरली मॉडर्न राइटर्स क्या करते हैं कि हर थोड़ी देर बाद आपको Oh, एक नए, I think I've read it. The Rule सैम of Three. सैम रिप्ली और समथिंग कुछ ऐसा करके नाम है उनका। Chennai, maybe not. It sounds like an Agatha Christie one. Na? No, 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 So, no. This is rule of three. तो it's like three people are groups of three में लोग मरते हैं, वो फिर तीनों अलग अलग लोगों की कहानी सुनाता है बंदा। hmm. अच्छा इसमें इट्स अ लॉट ऑफ पर्सनल, इट्स अ पर्सनल स्टोरी, कि वो है तो एक मिस्ट्री, लेकिन इट्स अ पर्सनल स्टोरी। मुझे लगता है कि ये बहुत टायरिंग हो जाता है, क्योंकि मैं अब उस बंदे की इंटरनल स्ट्रगल को एक पेज पढूं, दो पेज पढूं, आप 20 पेजेस में वही दिखा रहे हो, और यूजलेस इंफॉर्मेशन है जिसका एंड रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बट दैट्स मी, मे बी पीपल लाइक इट, बट आई थिंक जो जितनी भी बेस्ट कहानियां मैंने सुनी है, जो आजकल बेस्ट सेलर्स मैं पढ़ रही हूँ, लाइक डेज एट द मोरासाकी बुक शॉप, इट्स अ ब्यूटिफुल लिटिल स्टोरी, अगर कभी आपने पढ़ी हो। Days at the Morisaki gift shop is also a personal story, and there's not some big reveal at the end, but it's a journey, and each step has a thing of learning. Each step takes you forward. Right now you're like ऐसे Story rather than descriptive prose. Na? So, डिस्क्रिप्टिव प्रोज कैन बी yeah. गुड ओनली फॉर अ while, उसके बाद ना वो टायरिंग हो जाता है कि अच्छा फिर मैंने यूं किया, मैंने यूं सोचा, फिर मैंने इस बादल को देख के ये देखा, मैंने अपनी आईने में शक्ल देखी तो मुझे It ये फील। doesn't take the story forward. नो, There's no point to this description, right? नो, You set a mood, you can set a mood in a few lines. 100%। Chalo,
Yeah, but you don't have to do the. I too get fed up with too much I think descriptive. most people would, right? So I think that that's what Khalil Saab did in the first two episodes. I think that's what we're in for. That's the ride we're sitting on now, because I Oh, think I feel Nadeem Beg has cut it down a little. yes, he has. I think so Yeah, too. he has, because I've noticed वो जो उनकी rhetorical what is the word, rhetorical cliches, maybe मैं Hmm. too much मैं अंग्रेजी मैं बहुता ही अंग्रेजी लभ रही हूँ ओ I don't know how to say it, but he has this way of constructing sentences Hmm. and conversations. Hmm. And surely Pyare Afzal Hmm. wale जो dialogues and construction of sentences can't be exactly the same as this. कुछ a suggestion to Khalil Saab कि आप प्लीज मूव ऑन। क्या मतलब वो क्या है वो अब हम खिड़कियां लॉक करके सोएंगे ना। सूरज को क्षमा दिखाने वाली बात है भाई, हम क्या बताएं आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खाली प्यारे अफजल की अगर हम बात करें तो प्यारे अफजल में फिर भी प्लॉट केप्ट मूविंग। वो या थेरेपिस्ट आता है तो ये आता है तो वो आता है, फिर वो उसको मिलने जाती है। प्यारे अफसल तो क्या प्यारे अफजल कमाल तो की। इतना कमाल ड्रामा था, मतलब मुझे सिर्फ आखिरी के कुछ बीच के एपिसोड ऐसे लगे थे कि जो मुझे लगा था कि यार ये रेपिटेटिव हो गया है। है लेकिन ना। हाँ उस वक्त मुझे लगता है चल भी जाता था, लेकिन अंटिल द वेरी एंड एक तो हमजा अली अब्बासी वाज अमेजिंग, और फिर मुझे लगता था कि उस ड्रामे के अंदर उन फैमिलीज की स्ट्रक्चर्स को इतनी खूबसूरती से खलील साहब ने डाला हुआ था कि जो जहाँ पे बेटे इतने अनरिलेंटिंग और क्रूअल बाप के साथ उनको रहना पड़ता है, उनकी पर्सनैलिटीज कैसे फ्रैक्चर होती हैं, उनके लिए इंटीमेसी क्या चीज होती है, वो एक लड़की से जो मोहब्बत करते हैं वो भी उनको सही से समझ में नहीं आ रही होती कि उनको उसके साथ करना क्या होता है। It made such beautiful psychological and social comments. But on the flip side, you have this train wreck of a drama called Sun Mere Dil, and I'm like, was he on something when he wrote that? What was he on? No, I think that wasn't an original idea. I think his idea was good, but how shall I put it? I feel that the director and the writer were not on the same page. Let's just Hmm. say that. Hmm. Hmm. I think that is Yeah, pretty much. everybody's on the same page. Hmm. Everybody. And this is the मजे की चीज ये है, Nadeem Beg is basically पक्का Karachiite, right? I think so. काफी अरसे से तो कराची से ही काम कर Yeah. रहे हैं वो, हाँ। Karachiite, and yet he's understood Lahore, you He is know. Punjabi though. He is Punjabi, I He believe. is. I I think can't so. Yeah. believe Yeah. He it. is. I think he's Punjabi. Yeah. Begs are Punjabis. No. I don't think he's correct. But Okay, I'll ask even, him. Humayun is Punjabi, I've heard, right? Humayun But is even Punjabi, but he is born and raised in in Karachi, Karachi, I think. Yeah, yeah. he's a Karachiite. I consider him a Right. Karachi. And a person from Karachi who lives in Punjab will maybe understand Lahore better, right? But Possible. I just wanted to say that Nadeem Beg got that kind of beautiful vibe Oh of my God. I think that nice to Lahore see. looks. Yeah. I mean, what Parvarish has done to Karachi is so shameful, and what. I'm never going there. Oh, मुझे ख्वाहिश होती थी, I I'm never blame going. you, Parvarish. And then you have. कराची वाले कह रहे हैं हमें आपको बुलाया। मैं बुला नहीं सकता, मेरी वजह से आ जाएं आप। नहीं, लेकिन आई थिंक मंटो के अंदर जो सारे, आई थिंक वो इसकी मिसाल उसकी होती है कि जब आप एक दुकान में जाते हैं और वो दुकान बड़ी खूबसूरत सजाई हुई होती है और उसमें तरह तरह की आपको ग्लिमरिंग आर्टिफैक्ट्स और ट्रिंकेट्स दिख रहे होते हैं, और वो बेसिकली एक रैबिट होल होती है जिसके अंदर आपको घुसना होता है, फिर आप डंजन में स्लिप इन कर जाते हैं। आई थिंक इट्स दैट। एंड हैं? जैसे हाँ, बिकॉज एक अंदर एक बहुत डार्क और डीप चीजें होने वाली हैं, तो मुझे तो लगता है दैट वे। आई थिंक दैट दूर से जो वो सारी खूबसूरती डाली है इन्होंने, इट इज ऑल अ veneer टू हाइड अ लॉट ऑफ डार्क एंड I टेरेबल like your थिंग्स। metaphor. I like your metaphor, but I'm gonna switch it up a bit and say, if I enter that store, I'm gonna say, do I need this? Because हाँ, डू नीड पहले दिस। हो चुका, they better have something हाँ, really. ये दैट इज वेयर द दैट्स वेयर इट्स, कहते हैं प्रूफ लाइज इन द पुडिंग। तो मैं कहती हूँ कि ये हमारे ड्रामे का पुडिंग का बता दें अब ये क्या होगा, क्योंकि अगर आप अपने ऑडियंस को हुक इन नहीं कर सकते तो आपके पास एक परफेक्ट रेसिपी है फिर भी आप उनको सस्टेन नहीं कर पाते, विच आई थिंक हैपेंड विद खुदा और मोहब्बत, जो फिरोज खान वाला था। खुदा और मोहब्बत स्टार्टेड सो स्ट्रॉन्ग एंड वेंट ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग, बट समवेयर डाउन द लाइन दे कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। एक तो वो प्रेमिस ही इतना रिडिकुलस हो गया था कि वो घर बार छोड़ के उसको स्टॉक करने पहुंच जाता है, और फिर आपने उसको मजलूम बना दिया। ऐसे लोग लूजर होते हैं He was भाई। a villain, if you ask me. Sorry, He was हंड्रेड he was परसेंट ruining the life. Oh my God. Oh my. Even though Feroz's acting was amazing, but I'm sorry, I'm not going. Yeah, you can feel sorry for a character maybe, but in real life, that guy, harassment, stalking, अंदर होना चाहिए था बेटा तुझे जेल में। तू तो सस्ता Hmm. छूट गया खुदकुशी करके।
तो गरीब लड़की ने क्या शरारत क्या कर दी थी कि उस लेने के देने उसके पड़ गए। हैं, राइट। मतलब तो ये ना, इसलिए मैं कहती हूँ खलील साहब बदनाम ज्यादा है, बद अच्छा बदनाम बुरे वाली बात है। हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट थी ये, जो कि परिजात के राइटर हैं, जो कि और बहुत सारी अच्छी राइट। कहानियां लिख चुके हैं, झोंक सरकार लिख चुके हैं। सो आई मीन खलील साहब अपनी इंटरव्यूज ना दें अगर ना खलील साहब। खैर, तो आई थिंक द बैड न्यूज इज क्या कह रही है? हो सकता है ये। नहीं, ये तो नहीं हो नहीं। सकता, हम उनके नगेट्स ऑफ विजडम कैसे मिस कर सकते हैं? सो आई यस। थिंक मंटो का जो सबसे रेड फ्लैग है वो खलील साहब की ऑनस्लॉट ऑफ मिसोजिनी है, और दैट बिग बिग ट्रक ऑफ डायलॉग्स दैट विल हिट अस ऑन द हेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि जो खलील साहब के कुछ जो सही पॉइंट्स वो सोसाइटी के बारे में मेक करते हैं, आई थिंक दैट इट वुड बी अनफेयर टू नॉट लुक एट दोज, बिकॉज आई थिंक कि हम लोग सब मिलके कैंसिल कर दो, मार दो, खत्म कर दो, लिंच मॉब बन जाते हैं सबके सब। नहीं, बस ना देखें। दैट्स इट, आप ना देखें, नंबर वन। अच्छा, no, don't watch. A lot of people online were saying, मैंने हर उठाता हूँ कि मैंने नहीं ये देखनी, right? And I'm तो मत like, देखो। okay, I ना देखो, हाँ right? Because that's what I'm doing. लेकिन मैं वो एक मिडिल ग्राउंड की बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ, मैं उन लोगों को अपील कर रही हूँ इस वक्त जो कि ये नहीं कह रहे, वो हेट वॉच शायद उस फेज में है, शायद क्या वो देखे जा रहे हैं, बिल्कुल। देखे जा रहे हैं, फिर लानते भी भेज रहे हैं। Sorry, क्या कह रही है? my Urdu is so bad. Did I say हर्फ उठाना या हल्फ हल्फ उठाना, हल्फ हल्फिया कहना, हल्फ इज लाइक टेकिंग एन ओथ, I हर्फ think इज I said वर्ड। हर्फ. My apologies, guys, to all Urdu speakers. हाँ, इट्स ओके। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लोग हेट वॉच कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अच्छा ड्रामा है बट हमें देखना पड़ रहा है, ओ माय गॉड ये जुमला क्यों आ गया, अंडरस्टैंड करें कि वो किस दुनिया में आपको लेके बैठे हुए हैं। वहां पे सब वो थोड़ी ना है, वहां पे सब लम्स के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं। उनकी वो जो दो अच्छा एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। You're all allowed an opinion. It doesn't bother me. मैं बल्कि पढ़ती हूँ और मुझे हंसी आती है when other people don't understand. Right? You हम्म। understand a context. You have to because the only thing that worries me is मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये है कि writers will stop challenging people and even if खलील साहब गलत हैं, let him write. You can reject his thinking. देखिए You can. सदफ, ये Yeah. लेकिन ये नहीं होता ना सदफ, होता है कि ये अगर आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद ऐसे हवा में तो नहीं की जाती। आप कोई लॉजिक बना के तनकीद करें ना। मैं कहूं कि जी मुझे काला रंग नहीं पसंद, ये एक पर्सनल बात है। अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि काला रंग ये दुनिया से उड़ा देना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा ना अगर देखें। नहीं, आप ना हाँ, मैं ना खरीदूं, मैं ना लूं, मैं अपने मैं खुद ना पहनूं, लेकिन ये वो चीज नहीं है। ये वो हम्म, चीज है कि अगर आप एक वर्क ऑफ आर्ट को देख रहे हैं, जब आप आर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, ड्रामे को, फिल्म को, लिटरेचर को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं कहते मुझे ये नहीं पसंद, मुझे इसमें एक डायलॉग ऐसा आया था उसके बाद से मैंने कहा बंद करो ये नंगा नाच, ये नहीं होता ना। आप एक उस चीज को, एक पूरी कहानी होती है, आपको उसको कहानी के पैराए में देखना चाहिए। अगर आप अपने आप को किसी भी किस्म का रिव्यूअर कहते हैं, या इवन अगर आप ओपिनियन भी दे रहे हैं पूरे ड्रामे को, 40 मिनट आपने ड्रामा देखा और आपने ये अखज किया कि उसने क्योंकि ये एक डायलॉग बोला था, ओ माय गॉड द ड्रामा इज सो मिसोजिनिस्टिक, नो, it is actually showing you the plight of what happens to generations of women. A mother has lost her children, a wife is taking care of her, disabled husband, that son is crying in front of his wife, वो emasculated हो गया है in this war that was supposedly so masculine. You have a father begging his wife, or his family for forgiveness. his sister, yeah, he's saying कि माफ कर दो और आगे ताकि और मेरी मुस्लिम बच जाए. Right, so हाँ। I can get all of that. लेकिन if someone is not understanding, वो you have to let them work it out. क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये it comes with experience and maturity, that you हम्म। understand the context of a drama, and to a certain extent, I think some people वो चाहते हैं कि वो नाराज हों. मैं हम्म। हुई है वो नहीं है वो मगरों ला के बैठी वो जो गाना है मुझे हम्म। मैंने इतना पसंद है. बिकॉज इट्स लाइक यू it takes a lot, particularly हम्म। because someone like Khalil Saab is a repeat offender, to keep an open mind for him. अच्छा, It ही takes. तो आई थिंक ही इज ट्रिगर हैप्पी, आई थिंक ही इज ट्रिगर हैप्पी व्हेन इट कम्स टू। Whereas, whereas the next generation, I don't know, Gen Z or whatever, हम्म। उन लोगों का ये है कि they draw a boundary. इसीलिए तो there's a lot of things going on with them. कुछ बातों में वो सही है कि वो immediately एक boundary draw कर देते हैं. That's it. You're no longer my parents over here in the West, and you offended सैड, me 3 times, so that's it. सैड, You're so दैट्स so सैड। so if they want to, then don't.
that's up to them. But generally, I think that the context of that was not misogyny, but it makes me laugh because we are wasting our time here because Khalid Saab will inevitably ना give us खलील साहब सुनेंगे something. ना जेनजी सुनेगी हमारी, है ना? Right. वी आर बार्किंग अप And द रॉन्ग also, ट्री. Khalid Saab will come up to the plate and provide us with ओ something. यस, ओ But, यस. yeah, he हाँ. will. तो No, he will. जो चीज है नहीं उसको हम लड़ रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं, और जब आएगा बिग ओल्ड प्लेट में वो उन्होंने हमें कुछ पका के देंगे समथिंग, तो देन विल आई हैव अ थिंक लिटिल। दे तो चुके हैं. मंटो इज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बहुत मजा आने वाला है सर अगले कपल ऑफ वीक्स में. I think so. It is at least engaging. I think that that's another thing. Maybe you don't. I want to point out to people that you don't need to agree with everything characters are doing or saying. Hmm. Right? You Also, you I think divisive people and divisive stories and divisive personalities always spark discussions and spark, that's polarized opinions, and that just makes it all the more interesting. But I really want people who are new to the Pakistani drama fold, Gen Z especially, and border par और इधर उधर से जो हमारी डायस्पोरा के बच्चे आके ड्रामा देखते हैं, उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए ड्रामों के लिए, विच आई a थिंक friendly reminder. वो नहीं एक आता आपको a फ्रेंडली friendly रिमाइंडर. reminder लेकिन चले, that ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं. मैं वापस ड्रामे के ऊपर आ जाती हूँ. हम अगर सिर्फ ड्रामे के हवाले से बात करें, जो प्रोडक्ट ओवरऑल है, आई थिंक इट्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट it with is. with the weak points of Khalil Saab's dialogues, which are not suitable for 2025 for the screen. However, there are a lot of important social messages. There's a lot of great psychological depth to his characters. There's a lot of background that you want to keep digging into. You want So to figure out. tell me this: Namir is probably Sajjal's brother in this, I think right? so. I think so. One I in think jail, right? the one So in he's jail. gonna come out with a gun at some point. I'm हंड्रेड waiting for. परसेंट अब टीजर में ही देख लेता, वो आता है यूं करके निकाल के गन. एंड जो है वो उसके अच्छा, व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस खलील साहब. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑफ माई हार्ट. आपने ये नहीं डाला अभी अपन 2 रुपए वाला गुंडा निकालेगा, अभी अपन ये करेगा. शुक्र है खुदा का कि ये गुंडे पंजाबी हैं. जो कराची वालों के साथ इन्होंने किया है ना, जो हमें मुंबई वाला बना दिया फॉर नो रीजन. मतलब ये क्या बॉलीवुड वाली हरकत है कि हर मुसलमान काजल लगा के टोपी पहन के आदाब जनाब कर रहा होगा. ये कराची वाले गुंडों को उन्होंने मुंबई के गुंडे क्यों बना दिया? आखा मुंबई में अपने जैसा कोई नहीं. क्या मतलब है भाई? कोई नहीं बात करता वहां पे ऐसे. Yeah, that's a Marathi thing, right? So I mean, I don't know what it is, but we don't talk like that I'm in quite Karachi. interested on this Amritsari dialogue, right? Hmm. Because that is, I think is it Chadda Punjab and Lenda Punjab or something What like does that this, right? mean? But the Punjab, West Punjab and East Punjab Okay. kind of thing. So and I'm getting the Manto, the original जो हमारे writer हैं, the Hmm. famous Manto, Hmm. Saadat Hasan, he was from Amritsar, Hmm. Yeah. right? Oh, What is Amritsari? There's a little underplay going on. that's So fascinating. That's fascinating because then there's a connection that he has. See, this is the problem, Khalil साहब. आप हमें किधर डाइवर्जन में लगाया हुआ है आपने. आप ये करें ना, ये वाले नगेट्स दें, ईस्टर एग्स डालें आप अपने ड्रामे में, तो हम मजे मजे से डिस्कस भी करें. आप पता नहीं क्या खवातीन के पीछे पड़ जाते हैं इस तरह की बातें करके. बट that's actually true that he has a lot of like he's the scenes between सनम एंड हुमायूं, और वो जो क्लासरूम्स वाले सीन है, वो बेचारे अब्राहम मैस्लो की नीड्स को भी उन्होंने काफी, मतलब लोगों ने पिटाई की हुई है कि यार ये स्पेलिंग ही गलत कर दी. मतलब एवरीबडी सच, मतलब ऐसा लेके बैठे होते हैं. अच्छा, लेकिन मजे की बात ये है, जो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं भी जरा अपने, प्रोफेसर थे, कम हाँ ऑन। प्रोफेसर थे, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन एक मैं भी डालना चाहती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, अपने ओके, दो ओके, 2 रुपए की जो मैं इंफॉर्मेशन डालना चाहती हूँ, वो ये कि सेकंड नंबर पे नहीं है मैस्लो की ये नीड्स में, इट्स सेल्फ एस्टीम. हायरार्की या में जो है वो फूड शेल्टर है पहला, सेल्फ एस्टीम और नीड फॉर ये सब चीजें और है. फिर ऊपर जाके काफी, और फिर टॉप पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं मोहब्बत से जोड़ के, क्योंकि मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट खलील साहब का है, बड़ा एजोटेरिक सा, बड़ा आर्टिस्टिक सा, फिलोसॉफिकल किस्म का कॉन्सेप्ट है. तो अगर वो उस हवाले से बात करते तो ज्यादा मजा आता. तो दोनों टीचर्स जो बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा दिल थाम के ही बैठी हुई थी. मैंने कहा प्लीज को भंड न मारना, प्लीज को भंड न मारना खलील साहब. आई होप यू हैव रिसर्च व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट हियर. बट आधी पौनी रिसर्च थी, बट चलो ठीक है. सो ये आई प्रॉब्लम क्वालिटी कंट्रोल नहीं है.
राइट यू आई थिंक वो इतनी उनको अपने ऊपर यकीन है कि किसी से इंसान कह देता है, जैसे आई आई लव द वे फरहत इश्तियाक सेड एंड शी इज आवर टॉप राइटर हम्म। है। हम्म। तो उन्होंने मुकाबले की है ना बिल्कुल, खलील अरे साहब। तो 100%, हाँ right, तो थोड़ी ऊपर ही होंगी उन्होंने उनसे। उन्होंने कहा कि in her interview with her she said I'm so grateful because I wouldn't have known what a person of Mustafa's age would have said in this circumstance. फिर मैंने पूछ लिया, right? अच्छा, And और वो that's कितनी ह्यूमिलिटी उनके अंदर थी जब उन्होंने कहा कि देखें, हम सबके पास राइटर्स रूम्स होने चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, बिकॉज व्हेन शी वाज रेफरेंसिंग दिस शी सेड दैट if I write a story, I would want a Gen Z kid to tell me that if I'm writing a Gen Z character, what would they say? And this is the practice in the West. हॉलीवुड में जब सिटकॉम्स लिखे जाते हैं तो राइटर्स रूम्स होते हैं जहाँ पे राइटर्स बैठ के डिवाइस करते हैं कि, और हर बंदे जितने के आइडियाज मिलके एक हेड राइटर उसको बनाता है, वो ही कमाल की चीज बनती है। देयर इज अ रीजन व्हाई सम ऑफ देयर शोज आर सो साउंड एंड यू लुक अप टू देम एंड यू से कि भाई ये क्यों नहीं बनाते आप, क्योंकि see आप the एक राइटर से कहते हैं 36 एपिसोड लिखो 2 महीने के अंदर। नहीं नहीं वो एक पैशन से लिखते हैं, वो उसके अपने फायदे हैं। सारे लेकिन पैशन से तो थोड़ा नहीं सी लिखते। ह्यूमिलिटी साइड में, वी हैव दिस मेंटालिटी कि या तो ब्लैक या तो वाइट, हम्म। राइट? वी कैन गो मिडवे। थोड़ा सा इंसान पूछ भी सकता है थोड़ी सी कि भाई देखो, आई आई स्टडीड बायोकेमिस्ट्री सो मे बी आई डोंट नो दैट मच अबाउट इकोनॉमिक्स एंड हम्म। Maslow's hierarchy of needs, हम्म। right? हम्म। Tell you about the tricarboxylic acid cycle, right? या। वो एक ह्यूमिलिटी इंसान में होती है, तो थोड़ा सा पूछ लेते तो अच्छी बात थी। बट आई एम गोइंग टू से वो जो फोकस और कंसंट्रेशन हमारे राइटर्स व्हेन दे आर ऑन देयर गेम, देयर ए गेम हम्म। देते हैं, इट्स व्हाई आवर ड्रामास आर अमेजिंग एंड आई से आवर बेस्ट ड्रामास विल बीट द बेस्ट ड्रामास ऑफ Netflix is हम्म। because there's so much passion in the writers. बहुत there's so much philosophy, so much हम्म। depth and emotional and physical, everything. हम्म। Whereas when you have a writer's room, that gets diluted a little. आप technical हो नो जाते नो हैं। नो नो, आई डोंट अग्री। आई हैव द ऑपोजिट व्यू। आई थिंक राइटर्स रूम जो है वो एक बड़ी क्रिएटिव स्पेस होती है, तो उसमें जब आइडियाज बाउंस बैक करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म आप करते हैं, तो आप, मुझे लगता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, विच आई थिंक व्हाट वाज You फरत रेफरिंग be टू। strong in a writer's room. देखो मैं हूँ नंबर वन। हायरार्की है ना उधर द कर्स्ड वर्ड हायरार्की है उधर। I would be saying ठीक है। नो 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 नो, एंड राइटर्स आर वेरी बदतमीज पीपल बाय द वे। राइटर्स को लोगों ने बना दिया ना कि, ओ माय गॉड, राइटर्स तो बड़े प्यारे और बड़े अच्छे, बिल्कुल नहीं होते, राइटर्स के बड़े बड़े हिस्ट्री में रहे विशस हैं। विशस लोग होते हैं। राइटर्स आर टेरिबल टेरिबल पीपल ऑफन, बाय द वे। अगर आप स्कॉट फिट्जजेरल्ड की लाइफ स्टोरी पढ़ लें, या आप और बहुत सारे राइटर जो गुजरे हैं, बड़े बड़े राइटर्स जो गुजरे हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, ट्रेजिक, डिप्रेशन का शिकार, परेशानियों का शिकार, लड़ाइयाँ। They're all like this, हाँ, देर creative। ऑल क्रिएटिव पीपल इज, या क्रिएटिव पीपल आर नॉट, पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करते हैं लोग उनसे हायर मॉरल ये तो बहुत कोड्स। अच्छे राइटर है भाई, कंपैरेटिवली, वही राइट? कह रही हूँ ना कि, हाँ, तो हमारे वाले बेचारे तो बड़ी अच्छी औरतें हैं जो घर पे बैठ के डाइजेस्टो में लिखती हैं और बस प्यार मोहब्बत की कहानियां, यस। नहीं, और तमीज पे से प्यार मोहब्बत की मॉरलिस्टिक लेसन देती हैं। तो कमिंग बैक टू, मैं मंटो नहीं हूँ फर्स्ट 2 एपिसोड्स, आई थिंक दैट दिस इज अ ड्रामा दैट, आई थिंक, जो उसके साथ इंसाफ वाली चीज है वो ये होनी चाहिए कि इस जिस ड्रामे के जो मैसेजेस हैं, जो कि उसकी एक स्पाइन है इस कहानी की, जो कि रिवेंज है, व्हाट हाउ रिवेंज मेक्स पीपल हार्टलेस, एंड जो लोग दूर से बड़े मासूम लगते हैं, वो पीछे से क्या क्या तूफान लेके बैठे होते हैं और क्या क्या बड़े बड़े वार करने के लिए बैठे होते हैं। और मर्दों की लड़ाइयों, जो लगता है कि ये मर्दों की लड़ाई है, लेकिन उसके पीछे जो रेपरकशंस औरत भुगतती है, वो एक रियलिटी है। सो आई थिंक, एंड एक और चीज जो मुझे लगता है, जो आई थिंक समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और समथिंग विच आई एम होपफुल अबाउट, इज वेरी कॉशियस ऑप्टिमिज्म बाय द वे, वो ये है कि मुझे लगता है खलील साहब हियर इज राइटिंग व्हाट ही नोज। आई थिंक ही हैज सीन समवेयर दीज फैमिलीज, ही हैज अंडरस्टूड, और मतलब कुछ देखा है उन्होंने, जो कि क्योंकि इतना क्लोज टू बोन है। हाँ, Recognize the you can characters, recognize वही the ऑथर है। events, the events, the way that he, you can always tell from a writer if he knows what he's talking about, when he's able to have a sequence of proper events, because when you tell the truth, you don't have to lie, you don't have to remember what happened, right? So if I'm, like, for example, me, I can write very well about autism, I can write very well about life in Karachi, I can write very well about a modern Pakistani woman living in Karachi and probably being an expat later in life, or the other struggles, like a self-made person. But if somebody, like, I was really upset when I saw the Balochistan incident where they shot a woman, and I was like,
oh my God, I want to write about it. But I was like, I will never be able to write about it because I don't understand that world. I don't understand how somebody can go and shoot a woman like that. So while I really would want to write about it, but I can't, at least not in the state that I'm in right now. Strange honor killing, because it wasn't like it's being framed, I think, as like, though star-crossed lovers kind Hmm. of thing. Hmm. Apparently, the man had 4 children and she had five or something like So, that. So they were married. Now, so no, no, it's being framed as, oh, jisno shadi. What they should be doing is it should be framed as rule of law. Who या are स्टेट you विद इन द to pass स्टेट या judgment? नो Who एंड are you? ऑनर किलिंग ही है ना आपका वही दो दो अडल्ट्स हैं अगर उनके मियाँ बीवी को मसला है अडल्ट्री से तो वो केस फाइल करें वो जो भी करें वही वाली बात है कि हम वो जो ब्लास्फेमी के लिए कहते हैं या और भी कोई कानून में हाथ में ले An ले order case, लॉ एंड right? ऑर्डर केस है मैं तो ये बात शुरू से कहती हूँ मैं तो कहती हूँ रियल वो जो सिचुएशन है ना जहाँ पे कहते हैं ये भाग गई थी मैंने कत्ल कर दिया इसका गैरत के नाम पे मैं तो कहती हूँ उनको भी गैरत के नाम पे कत्ल नहीं करना चाहिए उनको भी कहना चाहिए इट्स अ मर्डर Never, ever, because there is laws, हाँ there are cases to be built, and give us proof. आपने कह दिया वो भागी थी. How नहीं do we know? बट आप प्रूफ हमें देने वाले कौन होते हैं आपको मसला है पुलिस जाए ना आप एक लॉलेस स्टेट में तो नहीं रहते या अगर आप कहते हैं कि आप लॉलेस स्टेट में रहते हैं तो फिर आपको फिर कोई और चीज फिर आप आपके ऊपर अप्लाई कैसे हो सकती है आप तो फिर अपने But फिर जो आप फिर आके समंदर में जाके घर बना ले ये क्या you बात know है what? A lot of the information comes out and it's lies. हम्म Even now, I'm not sure about this case either, लुक right? ऑल आई Because नो ऑल manipulate करते हैं information को. We don't know. Maybe she isn't पांच बच्चों की माँ. I mean, Exactly. You don't know anything. We don't know anything, right? All I yeah. know is that I saw that video, and this is not the first time that we've seen stuff like this. I think that tribalism and feudalist cultures and mindsets and ये structures जिरगे विरगे जो in है ना, Pakistan खत्म कर ये अच्छा एक जमाने में ना जिरगा लॉ खत्म करने की बात हो रही थी मैंने उस वक्त ये और मेरा अभी भी ये आर्ग्यूमेंट है कि खत्म ऐसे तो नहीं होगा कि एक दिन आप सब बुड्ढों को बिठा के एक ट्रक में बिठा के आप कहीं बलूचिस्तान की किसी पहाड़ी से फेंक देंगे नीचे ऐसे तो नहीं होगा आपको हाँ आपको ये करना है कि आपको उस जिरगा सिस्टम के साथ साथ आपको ये कहना है कि नहीं ठीक है अगर आपको जिरगे का कोई फैसला देना है तो उसके बाद फिर कानून फैसला एंड में कानून करेगा आप लोग आपस में कम्युनिटी मेंबर्स जो डिसाइड करते हैं लेकिन लास्ट वर्ड विल बी ऑफ द कानून ऑफ द पाकिस्तान It पीनल looks कोड so, Zahire, look, this is like, but we are losing our point. But in a way, it does reflect from what मैं Manto know is basically rule of law. मैं Manto में भी that is the big deal, isn't बट it? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन Why राइटर्स are these gangs operating? Lack of rule of law. ऑफ The कोर्स जो सेंटर की रिट है, वो कुछ it's भी not. नहीं है स्टेट की रिट तो कहीं पिट चुकी है बेचारी ठीक है मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि जब कोई राइटर वो लिखता है ना जो उसको पता होता है जो उसने देख लिया होता है जो उसने कहीं ना कहीं अपनी आंखों के आगे पीछे उसने कहीं एक्सपीरियंस किया होता है तो वो Right. बहुत अच्छे से मैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर मैं लिख सकती हूँ कराची के अंदर और इसीलिए मुझे जेंटलमैन बहुत बॉदर करता है बिकॉज दिस इज नॉट हाउ स्ट्रीट क्राइम्स हैपन आई हैव एक्सपीरियंस देम आई फेस देम इन कराची सो फॉर मी आई थिंक कि खलील साहब ने जो मुझे लगता है जिसमें मुझे उम्मीद अच्छी है मंटो से वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूरा होते देखा है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बीनीथ ऑल ऑफ द सुपरफिशियल और मोहब्बत में यूं चांद और तारा और आसमान और जमीन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स there is some serious sequence of events that need to be followed in that. Do I wish that he had done them properly? Yes, but he has given us that information where he says that it started at this time. This is a mediator. These are these two brothers. They have been fighting. They've lost 112 and 114, yeah, 118 and 116, whatever people. There is a whole sequence of events and it's very specific. So for anyone watching this, I think I would urge them to really stay close to that because that is Before going we to be uh, significant. before we finish up, I wanted to talk about, like, and this is something that I noticed. Khalil साहब का जो एक trope होता है, there's Hmm. always this woman on the side, Hmm. right? ये जैसे सनम सईद का character is taking up Hera Mani's role Hmm. from Mere Dil, ना? Okay, so Sanam Saeed is kind of his character reminds me of Hera Mani's character, and if you go back, I think there's always a secondary character even in Pyare Afzal, right? So Hmm. Even in his short film, वो जो क्या थी yeah. वो जो बहाज और महवेश वाली फिल्म जो थी Hmm. वो There's उसमें भी always a woman on the side who would be a better choice,
would हाँ be the right choice. But for some reason, hero साहब जो है ना, won't focus on her because she's हाँ too good. She's a sensible choice. He always goes for the passionate mistake. So that's kind of हम्म, like an interesting trope in his dramas. Since we're discussing Khalil Saab, and या I wonder, I think this time though, of course, Sanam Saeed is vastly positive, and it was very interesting the way that she's discussing ke, basically, she's got a lover or a boyfriend. He's हम्म coming up to meet her. It didn't work out, and हम्म she's nahi baat nahi chali, and there's no judgment there, and that was very interesting to very me. mature. Yeah, कि भाई वो she's meeting a guy, it didn't work out, and so she comes over and she's very frank, and she वो आराम से, have you noticed these women are always very frank. वो हीरा मानी का कैरेक्टर्स वह लोगों के घरों में घुस रही है गाजर के हाँ हलवे के साथ. It's definitely a trope. And वो जो मंटो साहब है वो ब्रेन डेड है. He doesn't mind that she's coming in. There's no नहीं वो moral उसको तो element to it. सिंपलटन थोड़ा सा दिखाया हुआ तो है, टू हिज क्रेडिट। लेकिन ये होता है इनकी कहानियों में, ये जरूर होता है कि जो मर्द होता है वो इतना अनअज्यूमिंग इनोसेंट सा फ्लावर चाइल्ड होता है, इतना वो मैं तो एक मासूम फरिश्ता हूँ जो मैं फूलों और बुलबुलों और तिलियों के बीच में फिरता रहता हूँ, मुझे तो जमाने की रियलिटी My का little इल्म ही pony नहीं है। से खेलता हूँ. Yeah, हाँ, yeah. मुझे तो जमाने की रियलिटी का पता ही नहीं, मैं सुबह अच्छे बच्चों की तरह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, मम्मी को हाय करके काम पे जाके घर आके जाता हूँ, ये इविल वेमेन ऑल करप्ट मी, ये मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी इन औरतों ने की है। दैट इज इज ट्रोप। मगर मगर मुझे अगेन मैं हम भूल गए थोड़ा सा बेचारे हुमायूं सईद को क्रेडिट देना। आई थिंक ये जो मंटो का कैरेक्टर है या खलील साहब जब भी इस तरह का किरदार लिखते हैं, आई थिंक हुमायूं के अंदर वो वल्नरेबिलिटी है एज अ हीरो एंड एज अ पर्सन ऑल्सो, जो शाइन थ्रू करती है। तो इसलिए वो जो प्रॉब्लमेटिक और वियर्डो कैरेक्टर्स भी होते हैं ना, हम उनको कहते हैं हाय बेचारा, चलो, Looks help a lot. या द लुक्स हेल्प अ लॉट। और दूसरी चीज है कि जो वो पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना हुमायूं का, आई थिंक ही इज नेवर प्लेड दिस एवतार बिफोर, आई थिंक यस ही प्लेड सर्टेन काइंड्स ऑफ दिस एवतार, बट इतना बड़ा लूजर हुमायूं से प्ले करेगा, ये वाज नॉट ऑन माय बिंगो कार्ड। I don't know, but I think we shouldn't classify it as a loser. We're playing काफी like, क्या मतलब है सदफ, अच्छा खासा लूजर सा बनाया हुआ है, मतलब कोई स्पाइन नहीं है बेचारे के अंदर। वो उसके सामने बैठ के, गुंडी लड़की के सामने बैठ के वो फुल नंबर फेमस पॉइंट। को कितना क्लेवर होता है, उसको मूड उसका ठीक कर ही लेता है ना. यू सी दैट पॉइंट टू, कि उसे हंसा देता है, कि मुझे लगता है बट कि लूजर है ना फिर भी, मेरा मतलब इडियोटिक नहीं है, ही इज वेरी स्मार्ट, बट ही इज अ लूजर, दे आर स्मार्ट लूजर्स टू। okay. I just don't like that designation, because I don't like this whole alpha male and beta male and all this. लोग इंसान होते हैं. बट वो तो फिर इसका मतलब है कोई भी कैटेगरी ह्यूमन बींग्स की हम नहीं डाल सकते। मुझे तो लगता है लूजर वो होता है जिसके पास अपने लिए स्टैंड लेने की स्पाइन नहीं होती। इफ आई डोंट लाइक समबडी, आई थिंक दैट मेक्स यू अ लूजर इफ यू आर पैंडरिंग ये और यू आर। लॉजिकल के शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी के साथ पंगा लेना. हाँ, तो फिर आप पंगा ना लेना, फिर आप चिल करें, फिर आप रिलैक्स करें, और फिर अच्छा, आई लाइक दैट बिकॉज आई थिंक के हर हीरो कहानी में हर जगह हर वक्त आपको वो डूइंग द राइट थिंग ऑल द टाइम वाले गेट्स टायरिंग सो क्विकली। आई लव्ड इकबाल मुन्ना फॉर सो मेनी रीजंस, बट देन एट वन पॉइंट इन टाइम आई वाज लाइक ब्रो, क्या कर रहा है तू भाई, क्या मसला है तेरे साथ। और वही मैंने बताया ना, बिलाल अब्दुल्ला इतने अच्छे सेंट थे भाई, वो तो एक हम्म. कोई वो सूफी बुजुर्ग बनने के लेवल पे पहुंच गए थे, भाई क्या मसला है आपके साथ, कभी 8 करोड़ I कभी 6 करोड़। Ilsa fell in love with Bilal Abdullah more than the actual characters in the आई डिड show. नॉट फॉल इन लव विद Ilsa बिलाल was अब्दुल्ला। in love with Bilal Abdullah, right? आप कई बार writers जो हैं वो you fall in love with the character. There's someone that he really admired, so he didn't allow Bilal Abdullah to have टू हैव those ह्यूमन क्वालिटीज। human या qualities. नो, But I mean, I don't want to we don't want to relitigate that Sun Mere Dil. बट सर इट्स सो, द ट्रॉमा इज सो रिसेंट, कांट लेट गो। I can let go because I want to save my brain for And this. you want to dissociate from it. Yes, I definitely. just I just feel like after सुन मेरे दिल I had completely written off कि यार क्यों, I was like यार क्या ही But होगा मंटो में। again, let's see. I look, this is all our approval, yeah, Mary at least approval. Caveat. हम्म The minute something nonsense happens, I reserve the right to step back and say, good luck with that.
हाँ बट देखते हैं क्या होता है मुझे। मिलांगे। हाँ फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आई थिंक आगे जाके इट कुड गो इधर वे, इट कुड गो हियर, इट कुड गो देयर, वी डोंट नो। सो गाइस दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन मेमेंटो नहीं हूँ। आप बताइएगा आपको ड्रामा कैसा लगा, डिस्कशन हमारा कैसा लगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड व्हेन यू आर वाचिंग मेमेंटो नहीं हूँ, बिकॉज देयर इज सो मच टू अनपैक, बट देन देयर इज आल्सो सो मच टू लव एंड हेट एंड लव एंड देन probably like so. Yeah, Sadaf, Can go ahead. I add one last point, Yes, right? yes, I yes. want to remind people this is a drama, right? Mm. And this is why I'm giving it some kind of वो नहीं है वो क्या कहते हैं God, and I'm so my it's gone out Margin, of my giving it some kind of margin margin. because dramas they set up a premise. It's not like a movie, right? Yeah. ड्रामा सेट अप अ premise, बाद में चाहे वो उस premise को वो तोड़ दें या अनफोल्ड करके एक्सप्लेन कर दें. It takes a few Hmm. episodes. Whereas you can see in certain dramas they're train wrecks because they're building on that premise. Whereas in other good dramas they'll unfold, yeah, they'll explain, yeah, they'll break open that premise. So, remember it's a drama. Maybe there's certain things in the first two episodes that you didn't understand, right? So you may need a few episodes to understand it. ऑल्सो आई थिंक के ड्रामे के अंदर कहानी जो होती है, वो जो जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम योर पॉइंट एंड देन रैपिंग अप, के ड्रामे की जो कहानी होती है वो कभी भी ऐसी नहीं होती है कि आपने एक दो एपिसोड्स देखी बस फिर आपको समझ आया है, नहीं है कभी कभी। और मैंने मुझे याद है जब मैं अगेन सॉरी सुन मेरे दिल की बात कर रही हूँ, पर मैं सुन मेरे दिल देख के मैं जो थोड़ी देर छोड़ के आई कैम बैक टू इट कि Mhm. शायद कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने शुरू में तो देखा ही था। तो मैंने कहा Hmm. शायद कुछ रिडीम कर दिया हो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे दी हो किसी चीज की। लेकिन नहीं भाई, वो तो एक बहुत ही बड़ा मसला था। खैर, एनीवे गाइस, लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एज ऑलवेज। हम फिर मिलेंगे अपने बाकी के रिव्यूज के साथ गाइस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगली से अगली मुलाकात मेरी और सदफ की, मैं होंगी पाकिस्तान में, सदफ होंगी डैलिस में। और फिर कोशिश करेंगे कि आपके पास हम और इंटरव्यूज लेकर आएं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take care of yourself, guys. Thank you so much for liking, commenting, subscribing, sending us your lovely comments. अपने जान हाथ माल से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। सदफ को फॉलो कीजिएगा और ये सारे काम आपने करने, ठीक है? थैंक यू सो मच सदफ, खुदा हाफिज। Thank you.